Okay, class 4, part B is working with words. Question number 1, punctuate the following. What is meant by punctuate? What is the meaning of punctuation and why do we need punctuations? Because class 4, punctuation shows how each sentence should be read. Without a punctuation mark, we can't understand the sentence properly. Without any full stop, comma, and what are the basic punctuations marks? Full stop, comma, question mark, exclamation mark, and inverted commas, quotation marks, you can say inverted commas. These are the basic punctuation marks which are used in a sentence. There are many other more, but these are the basic: full stop, inverted commas, and question mark and exclamation marks. Without these marks, we can't understand the sentence properly. If there is no full stop, if there is no full stop comma in a sentence, then it shows the continuity of a sentence and there is no ending of a sentence. Full stop shows, first one is full stop shows the end of a sentence. It marks the end of the sentence कि हमें पता चल जाता है कि full stop लगाते ही ये sentence complete हो गई यहाँ पे, उसके बाद अगला sentence शुरू होगा. Comma shows, what comma indicates? Comma indicates a pause, or it is used to separate items in the sentence, in the list. For example, if I said कि Ali bought apples, bananas, grapes and oranges from the market, we can't understand the list, how many things Ali bought, unless we put commas in between the list, in between the things. For example, apple, comma, mango, comma, bananas. It shows कि ये list में चीज़ें हैं जो अली लेकर आया है बाज़ार से. So commas indicate the pause. Comma indicates is used to separate items in the list. So, and what question mark indicates? Question mark indicates the end of a question. After every question we put a question mark to show that this is a question पूछा गया है, तो question mark इसलिए ज़रूरी होता है. For and the exclamation marks, it shows the emotions, it shows the feelings, strong feelings. It marks the dramatic statements. Sudden outcry shows emotions. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई है खुशी की बात हुई है तो आप बहुत एक्साइटेडली बोलेंगे हुर्रा आई वॉन द मैच, तो ये आपकी एक्साइटमेंट लेवल शो कर रहा है, तो उसके आप आगे लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ सैड, अब सैड आपको ये उदासी शो करे, आप सैड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास. इट इंडिकेट्स द डायरेक्ट स्पीच. इट इंडिकेट्स दैट ये जो सेंटेंस है ये इस स्पीकर ने बोला है. फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस है, व्हाट हैव यू डन क्राइड DNP. देयर इज़ नो फुल स्टॉप, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क, देयर इज़ नो पंक्चुएशन इन दिस सेंटेंस. व्हाट हैव यू डन क्राइड DNP. DNP चिल्लाया, ये तुमने क्या किया. अब this sentence shows no emotions, no feelings. We can't understand the sentence properly unless we put the punctuations. For example, what have you done. इसको अब इमोशंस और फीलिंग्स देने के लिए वी पुट द इन्वर्टेड कॉमास हियर. व्हाट हैव यू डन. ये स्टेटमेंट किसने बोली है? DNP ने. अब हमें पता चला है DNP ने चिल्लाया और चिल्ला के कहा व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया. अब व्हाट क्वेश्चन पूछा गया, सो वी पुट द क्वेश्चन मार्क हियर. व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया. क्राइड DNP, फुल स्टॉप. ये सेंटेंस अब यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद कंप्लीट हो गया. ये बात DNP ने की है. DNP ने चिल्ला के क्या व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया है. दिस शोज़ इमोशंस. तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, क्वेश्चन मार्क शो लगा दिया, जिससे हमें पता चला कि ये DNP ने चिल्ला के ये सेंटेंस बोला है. सो क्वेश्चन मार्क शोज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चंस एंड द इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स शोज इंडिकेट्स द डायरेक्ट स्पीच, कि ये बात जो है ये इंसान ने कही है, ये बात कही गई है DNP से, DNP ने कही है ये बात. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. पंक्चुएट द फॉलोइंग. Yes, it's all looking a little crumpled, he thought to himself. Yes, a first letter is always capital. Yes, underline Y and we put the capital letter here. Yes, comma, it's all looking a little crumpled. अब ये एक स्टेटमेंट बोली गई है, he thought to himself. उसने खुद से सोच के क्या सोचा उसने. It's all looking a little crumpled, उसने ये खुद से सोचा है. अब जो उसकी सोच है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि ये उसकी सोच है. येस
कोमा, इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड, कोमा, पॉज आ गया, यहाँ पे पॉज आया और इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया बिकॉज ये उसकी सोच थी, ये उसकी सोच बताई गई है। उसके बाद कोमा, पॉज आ गया, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने ये खुद से सोचा, एंड फुल स्टॉप, द सेंटेंस completed here, it's the ending of a sentence. Next is sitting, comma, please, comma, पॉज आ रहा है, सिटिंग बैठ जाओ, प्लीज़ मेहरबानी फरमा के, ये पॉज के बाद कहा गया है। सेट द मैन, कोमा, पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर, फुल स्टॉप, सिटिंग का इस कैपिटल। नेक्स्ट इज आह, यानी कि एक उदासी सी आवाज़ एक निकली, आह। आह के बाद एक, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, इट शोज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ सैडनेस, सो वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क हियर, कैपिटल ए, इन्वर्टेड कोमास में आ। सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सैट डाउन, फुल स्टॉप, टू वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। टू वर्ड्स, ये एक हैरत से पूछा गया, सिर्फ दो अल्फाज, दो लफ्ज़ों में उसने बात कर दी, तो ये उसने हैरत से सोचा, टू वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज़ फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लेटर कैपिटल था। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ इट, कहाँ है ये, सवाल पूछा गया है, सो क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू कैपिटल। आई आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बियर्ड यानी कि मेरी दाढ़ी को ट्रिम कर दें, तराश खराश कर दें, कोमा, नॉट शेव इट ऑफ, इसकी शेव करने को नहीं कहा था। अब ये वो बहुत गुस्से से, बहुत आप हैरत से अपनी आपको देखकर, रिफ्लेक्शन को देखकर वो ये बोल रहा था, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज। वेयर इज़ इट, ये कहाँ है। आई आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बियर्ड की ट्रिम कर दो, नॉट शेव इट ऑफ, लेकिन इसको शेव करने को नहीं कहा था। सो कंप्लीट दिस पंक्चुएशन मार्क्स, थैंक यू।